Good morning, dear students. Students, in the previous class, we had started with the chapter that is neural control and coordination. In this chapter, we have discussed about the introduction part that the nervous system will be regulating all the other functions that are occurring in our body. For control and coordination of all the activities, two such systems were important. One was neural and one was endocrine. So point to point connection that is being given by the nervous system, because all the nerve cells will be present in a sequence and they will be reaching up to the respective organ or respective gland or muscle or cell where the function has to be performed. And therefore it is known to give an end-to-end, point-to-point connection and a more organized network. In human neural system, we have talked that there are, that is including central and peripheral nervous system. The central nervous system means brain and spinal cord, and the nerves which are emerging from central nervous system, that is cranial nerves and spinal nerves, are the part of the peripheral nervous system. Further, peripheral nervous system was divided into somatic and autonomic nervous system. One will be regulating the activity of muscles, whereas another will be regulating the activity of the smooth muscles. Okay, so one is for voluntary control and one was for involuntary control. Now beginning with the first part of our nervous system, that is the structure of the nerve cell. बात करते हैं nerve cell या neuron के structure के बारे में. So the very first thing we know that the nerve cell is the basic structural and the functional unit of the neural tissue, right? Neural tissue कह सकते हैं या तो आप पूरा nervous system कह सकते हैं. That हमारी nervous system में या हमारे neural tissue में जो सबसे basic structural unit है, that is the nerve cell. So nerve cell is a very important cell of our body, and sometimes this cell ranges or is of even the length of our body, right? So the length of nerve cell can even extend throughout the body, and therefore we can say that they are the longest cells of our body. कई nerve cells ऐसे भी होते हैं जो spinal cord से start होके हमारे leg तक पहुंचते हैं. Some of the nerve cells in the brain are such that वहां से nerve cell originate हो रहा है, nerve fiber reaches to your lungs, to your kidneys, liver and other organs. This shows that the length of the nerve cell is longest among all other types of cells. Moreover, there are about 100 billion neurons that are present in our body. So if we talk about the number of the nerve cells, it is nearly 100 billion nerve cells will be present in our body, and that also most of them are located in the brain. Most of the nerve cells कहाँ पे होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मैक्सिमम नर्व सेल्स आ जाते हैं, और फिर बाकी की बॉडी में नर्व्स होते हैं जिनमें नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो देयर विल बी 100 बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स दैट आर प्रेजेंट. वन मोर थिंग दैट इज नर्व सेल्स आफ्टर गेटिंग मैच्योर्ड और डेवलप lose the property of cell division. So nerve cells once matures, it does not further divide and remains in interphase. तो नर्व सेल्स एक बार डेवलप हो जाने के बाद फिर ये डिवाइड नहीं होते, दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. और ऐसे सेल्स जो लूज कर लेते हैं वो सिर्फ कौन से फेज में रहते हैं? दे रिमेन इन द इंटरफेज ओनली. कई नर्व सेल्स ऐसे होते हैं जिनका सेल बॉडी पोर्शन
फ्लास्क की तरह दिखते हैं, उन्हें कहा जाता है पर्किंजे सेल्स. दे आर नोन एज पर्किंजे सेल्स. सो न्यूरॉन्स विथ flask shaped cyton, flask shaped cyton are known as Purkinje cells, and these Purkinje cells are found in the part called cerebellum. अगर आपको ब्रेन के थोड़े बहुत रीजन्स पता हो तो इट इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. और जो हिंड ब्रेन होता है, इस हिंड ब्रेन में एक रीजन होता है जिसे कहते हैं सेरिबेलम, जहाँ पे पॉन्स आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है और सेरिबेलम आता है. तो वहां पे जो नर्व सेल्स हैं उनके साइटोन फ्लास्क शेप के होते हैं, तो वो थोड़े अलग है, इसीलिए उनसे कहा जाता है पर्किंजे सेल्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसेस इमर्जिंग फ्रॉम द सेल, राइट. एक नर्व सेल में क्या स्ट्रक्चर होता है? तो नर्व सेल consists of a cell body and secondly there is neurites. दो चीजें होती है एक नर्व सेल में, सेल बॉडी और न्यूराइट्स. न्यूराइट्स मतलब क्या कि साइटोन में से या सेल बॉडी में से इमर्ज होने वाले प्रोसेसेस को न्यूराइट्स कहा जाता है, राइट. प्रोजेक्शंस को न्यूराइट्स कहा जाता है. तो पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द सेल बॉडी. So this region which you can observe in the diagram, this central part is known as the cell body. It is also known as cyton. जो बीच का रीजन है उसे सेल बॉडी या साइटोन कहा जाता है. तो सेल बॉडी it is of variable shape and size and ranges about 13 to 14 माइक्रोमीटर. सेल बॉडी का शेप जो होता है वो ज्यादा फिक्स नहीं होता, कई बार इरेग्युलर, कई बार सर्कुलर, कई बार स्फेरॉइड शेप होता है. तो शेप्स थोड़े वेरिएबल होते हैं सेल बॉडी के, साइज भी थोड़ी वेरिएबल होती है, बट नियरली 13 to 14 माइक्रोमीटर इज एन आइडियल साइज ऑफ द सेल बॉडी. सेल बॉडी जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को यहाँ पे कहा जाता है न्यूरोप्लाज्म. So the cytoplasm of cyton is called neuroplasm. So here there will be neuroplasm. Also there is presence of nucleus. Nucleus के अंदर there will be nucleolus. There will be organelles like ribosomes, mitochondria, ER, Golgi, lysosomes, etc. Right? सारे ही organelles जो है वो present होते हैं in the cytoplasm. Cytoplasm के अंदर मतलब along with the organelles there is presence of nucleus and nucleolus. अब दूसरी चीज जो importantly present है, there is also consist of neurofibrils, neurotubules and Nissl granules. और तीन चीजें जो यहाँ पे प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ. तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा लेबल कर देती हूँ. दिस इज द न्यूक्लियस, राइट. द सराउंडिंग रीजन दैट इज द साइटोप्लाज्म, जिसे हमने कह दिया न्यूरोप्लाज्म है. न्यूरोप्लाज्म, सारे ऑर्गेनल्स भी वहीं पे प्रेजेंट है. वी आर नॉट मेंशनिंग ऑल द ऑर्गेनल्स. दिस ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच यू कैन ऑब्जर्व इज कॉल्ड Nissl granule. Along with Nissl granules, there are two more structures which I have mentioned. एक लिखा है न्यूरोफाइब्रिल और एक लिखा है न्यूरोट्यूब्यूल. अब देख लेते हैं ये तीन टर्म्स क्या हैं. न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो बहुत ही थिन फाइबर्स होते हैं एंड दे हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स.
ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए जरूरी होते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। तो जब भी सिग्नल आता है और उसे आगे कंडक्ट करना है तो हु हेल्प्स इट? न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोट्यूब्यूल्स जो है दे आर सिमिलर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द सेल। जैसे सेल में माइक्रोट्यूब्यूल होता है वैसे यहाँ पे नर्व सेल है तो न्यूरोट्यूब्यूल, और इसका फंक्शन जो है इट इज टू गिव द शेप एंड साइज। तो साइटोन का जो शेप साइज मेंटेन रहता है दैट इज ड्यू टू द न्यूरोट्यूब्यूल्स। एंड निजल ग्रैन्यूल्स, निजल ग्रैन्यूल्स आर broken down ER with free ribosomes, free ribosomes। तो इनका रोल रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में। व्हाट इज द रोल? प्रोटीन सिंथेसिस। सो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो यहां से होगा थ्रू द निजल ग्रैन्यूल्स, क्योंकि वो ER है और ER के साथ साथ राइबोसोम्स अटैच हैं, इसलिए वो जो साइट है वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब आगे बात करते हैं, हमने सेल बॉडी के बारे में काफी बात कर ली। नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूराइट्स। न्यूराइट्स मतलब सेल बॉडी में से इमर्ज होने वाले प्रोजेक्शंस। ऐसे यहाँ पे दो प्रोजेक्शंस हमें दिख रहे हैं, एक है डेंड्राइट्स और एक है एक्सॉन। सो लेट अस टॉक अबाउट द न्यूराइट्स नाउ। So after discussing cell body, we talk about the neurites. So neurites are the projections, or you can say the processes that will be developing from the cyton. Cyton में से जो projections आपको दिख रहे हैं उन्हें neurites कहते हैं। तो ये जो projections है वो दो टाइप के हैं। तो पहले हम बात करते हैं about the dendrites। डेंड्राइट्स जो होते हैं दे आर शॉर्ट ब्रांच्ड एंड टैपरिंग, राइट। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं दीज डेंड्राइट्स आर गोइंग टू बी शॉर्ट प्रोसेसेस, दिखने में ये काफी शॉर्ट होते हैं, एंड दे हैव द प्रेजेंस ऑफ ऑल द ऑर्गेनल्स ऑल्सो, as well as there is presence of neurofibrils and nasal granules। ये इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम एक्सॉन की बात करेंगे तो एक्सॉन में निजल ग्रैन्यूल्स नहीं होते, इसलिए मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि साइटोन और डेंड्राइट्स दोनों में निजल ग्रैन्यूल्स होते हैं, जबकि एक्सॉन में निजल ग्रैन्यूल्स नहीं होते। तो डेंड्राइट्स जो है दीज आर द शॉर्ट प्रोसेसेस। ये शॉर्ट प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो ब्रांच से दिखते हैं, आप देख ही सकते हो डायग्राम में दैट दे आर ब्रांच एंड दे आर स्मॉल। टैपरिंग मतलब इनके एंड्स जो है वो टर्मिनेट हो जाते हैं, इसलिए टैपरिंग कहा जाता है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ निजल ग्रैन्यूल्स इन द डेंड्राइट्स। Moreover, dendrites are the one which will be receiving the impulse from the another nerve cell. So they are known as efferent processes. So dendrites are efferent process as they receive the impulse. As they रिसीव द इम्पल्स, इम्पल्स को रिसीव करते हैं, किससे रिसीव करते हैं? तो प्रीवियस जो नर्व सेल होगा उनसे रिसीव करके कहां पे देते हैं? टू द सेल बॉडी, इसीलिए उनको क्या कहा गया है? एफरेंट प्रोसेस। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज द एक्सॉन। तो एक्सॉन की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस। डेंड्राइट्स बहुत सारे हो सकते हैं पर एक्सॉन कितने होते हैं? एक ही होते हैं। सो इट इज अ सिंगल लॉन्ग प्रोसेस। द जंक्शन बिटवीन द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक। इट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक। सो द प्लेस or you can say the point where cyton continues as axon
is called axon hillock. This site is known as axon hillock. अब ये जो पूरा लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहेंगे, axon कहेंगे. Now axon ends into axon terminal, right? So it terminates at site जिसे axon terminal कहते हैं. और ये जो axon terminal है वहां पे होते हैं synaptic knob. What is present? Synaptic knobs present है. So this is the axon terminal and this is the synaptic knob. ये जो synaptic knob होता है it consists of mitochondria and along with mitochondria there is presence of small vesicles जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर. तो सिनेप्टिक नॉब्स है, सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और वेसिकल्स है. और ये जो सिनेप्टिक नॉब है उनमें जो वेसिकल्स होते हैं उनमें होता है न्यूरोट्रांसमीटर. अब ये जो सिनेप्टिक नॉब है it can now be with the next nerve cell, means it will remain in the contact of the dendrite of another nerve cell, or if it is next muscle cell it will remain in the contact of the sarcolemma of the muscle cell. अगर ये muscle cell के sarcolemma के साथ, मतलब मान लीजिए इसके बाद एक मसल है, ठीक है, इसके बाद एक मसल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वो सार्कोलेमा के साथ कांटेक्ट करेगा. तो इस टाइम पे इसे क्या कहेंगे? मोटर एंड प्लेट कहेंगे. अगर ये दूसरे नर्व सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वहां पे हम क्या कहेंगे? साइनैप्स कहेंगे. व्हाट इज द वर्ड यूज? साइनैप्स. ओके, सो दिस नर्व सेल, one nerve cell will be in the contact of the another nerve cell and their junction will be known as the synapse, right? तो साइनैप्स भी कह सकते हैं, या तो अगर नीचे मसल सेल है तो मोटर एंड प्लेट भी कह सकते हैं, या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है. Now the axon, right, on the basis of the types of axons, दो तरह के होते हैं. So axons will be sometimes even their lateral branches are also present. साइड पे ब्रांचेस भी होते हैं जिसको हम मेंशन नहीं कर रहे, सिर्फ लिख देते हैं that these are known as collateral fibers. कई बार एक्सॉन जो होता है वो ब्रांच भी होता है, और ब्रांच हो तो उस फाइबर को क्या कहते हैं? कोलेटरल फाइबर्स. सो एक्सॉन कैन बी आइदर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड. दो तरह का एक्सॉन हो सकता है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड. माइलिनेटेड मतलब myelin sheath is present and non-myelinated मतलब absence of myelin sheath. ये myelin sheath जो है it is produced by the Schwann cells, whereas नॉन माइलिनेटेड में भी स्क्वान सेल्स होते हैं पर वो माइलिन प्रोड्यूस नहीं करते. तो ये नर्व सेल में आप दो मेम्ब्रेन देख सकते हो. बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है इसे कहा जाता है न्यूरिलेमा. बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे कहा जाता है न्यूरिलेमा, जो दोनों में प्रेजेंट है. माइलिनेटेड में भी न्यूरिलेमा होता है और नॉन माइलिनेटेड में भी न्यूरिलेमा लेयर होता है. ठीक है. पर ये जो अंदर थिक पिंक कलर का रीजन दिख रहा है वो है माइलिन शीथ, और ये माइलिन शीथ सिर्फ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में होता है. दैट इज माइलिनेटेड कहाँ पे होते हैं? तो हमारे जो ब्रेन के, मतलब हम लिख सकते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व सेल्स है वो माइलिनेटेड होते हैं. ठीक है. और फिर उनसे इमर्ज होने वाले जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जा रहे हैं, that nerve cells are sometimes non-myelinated. तो कई बार ब्रेन में माइलिनेट, मतलब जब आप पढ़ते हो तो आपने शायद सुना होगा
कि ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है। तो जो ग्रे मैटर है वो नॉन माइलिनेटेड है और व्हाइट मैटर जो है वो है माइलिनेटेड नर्व सेल्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइलिनेटेड में व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस विल बी नॉन माइलिनेटेड मतलब ग्रे मैटर। दूसरी एक चीज है दैट माइलिनेटेड नर्व सेल्स में प्रेजेंट होती है, वो है नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर आर द पॉइंट्स वेयर माइलिनेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीथ एब्सेंट है। अगर माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे माइलिन शीथ नहीं होती तो उसे कहा जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर। ये ऐसी जगह है जहां पे माइलिन शीथ नहीं है पर वो नर्व फाइबर कौन सा है, माइलिनेटेड। पर नॉन माइलिनेटेड में नोड्स ऑफ रैनवियर नहीं होते, राइट। देयर आर नो नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट इन द नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। इसके बाद अगर हम सिर्फ नर्व सेल के थोड़े टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में हमने पहले भी डिस्कस किया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन डिटेल, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स, नॉन पोलर, unipolar, bipolar and multipolar nerve cells। अब ये हमने पहले भी बात की थी। नॉन पोलर नर्व सेल सिलेंट्रेटा जैसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें कई सारे ब्रांचेस होते हैं एंड नर्व सेल फॉर्म्स अ नेटवर्क। एक नेटवर्क की तरह बन जाता है, बहुत से ब्रांचेस होते हैं और वो हमारी बॉडी में या वर्टिब्रेट्स में नहीं होता, सिर्फ वो सिलेंट्रेटा जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है। यूनिपोलर मतलब सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है और वो होता है एक एक्सॉन, राइट। सो देयर इज नो डेंड्राइट्स, अ सेल बॉडी एंड एन एक्सॉन, तो उसे क्या कहा जाता है, यूनिपोलर। हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जब नर्व सेल्स ग्रो होते हैं उस टाइम पे वो नर्व सेल्स यूनिपोलर होते हैं। सो एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस यूनिपोलर नर्व सेल्स आर फाउंड। बाइपोलर कब कहते हैं, तो बाइपोलर में देयर इज वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन। इसकी तरह नहीं, बहुत सारे डेंड्राइट्स नहीं होते, सिर्फ एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सॉन। ये बाइपोलर है और बाइपोलर हमारे आईज के रेटिना में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आईज। मल्टीपोलर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नर्व सेल जिसमें बहुत से डेंड्राइट्स हैं और एक एक्सॉन है। इस स्ट्रक्चर को मल्टीपोलर कहा जाता है। तो एक्सॉन के बेसिस पे दो तरह के नर्व सेल, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, and in general there are 4 types of nerve cells: non-polar, unipolar, bipolar and multipolar. So that is all the detail about structure of nerve cell. In the next class we will begin with the central nervous system, that is the regions of the brain.